Syllabus of communication skill in English. The syllabus Start for there. the syllabus for the subject has been prepared by the following instructions. Directions received by Mr. B. Samantha, WVSCT VESD. Wide. His mail date December 6, 2019 at 12:04 p.m. A meeting was held on 31st 10/2019 at the council. In the meeting, following decisions were taken by the council. First, it was decided un- uh, unanimously to adopt the curriculum structure of the AICTE Model Syllabus 2019 attached for all diploma courses of WVSCTVESD. Second, new curriculum structure and syllabus of diploma courses shall be prepared as per AICTE Model Syllabus 2019 and implemented from the next academic session, that is 2020-21 in phased manner. Third, content of the syllabus of diploma courses shall be customized as per the requirement and as per the advice of the syllabus subcommittee. सब कमिटी, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो क्या है कि पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, दूसरा है कम्युनिकेशन इन स्किल्स इन इंग्लिश लैब, ठीक है। और उसमें बताया है कितना लेक्चर लेना है, कितना सेमेस्टर क्रेडिट क्या है, वो सब बता रहा है। पढ़िए गुलशन कुमार। Engineering is a service, and therefore it exists to meet human needs. Needs are communicated through language. No engineer, no matter how brilliant, can do a good job if she or he does not know what the job is for, who they are serving, for what purpose, and what needs to be done to render this service. Feedback also has to be communicated in language. Figures are not enough without explanation. Communication is spoken or written is thus essential for any service provider to do their job. However, in most cases, the courses and syllabus offer to STEM undergraduates do not frequently छोड़ दीजिए address आप, छोड़ दीजिए। धनी राम आप पढ़िए, छोड़ दीजिए आप। सर शुरू से या नीचे however से? However, in most cases, the courses and syllabi offered to STEM undergraduates do not adequately address the needs to make the good communicator. It is often assumed that this question has been addressed by schooling, or they attempt to adapt liberal arts courses to the needs of STEM workers, thereby failing to address those needs. In a country such as India, where language learning is general and English learning is particular, tends to be neglected or mistaught. This problem is compounded. To be successful, communicative language learning has to be a two-way process. The communication between the teacher and the student, between students. However, the culture of student passively in the classroom, which prevails in India, is poor soil or the skill to take root. Material thus keep quiet culture of the Indian classroom and to encourage young people to find their voice. Polytechnic college and university students are just one small step away from become young performance, and when they take that step their live livelihood मार्टिना आप इसको पढ़ दीजिए, ये वाला पूरा जो है आपके सामने जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको पूरा पढ़ जाइए। We have therefore attempted in this course to produce a system that allows, within the known
constraints, even in a limit form. For project work and conversations, collaboration, and role play. To mitigate the keep quiet culture of the Indian classroom and the encourage young people to find their voice. Polytechnic college and university students are just one small step away from becoming your professionals. And once they take that step, their livelihood and also the safety of happiness of their clients will depend upon how well they can ask and answer questions in the real world. Without adequate practice, confidence building, and positive reinforcement, the practice of teaching them the, the pedantic small points of the rules of English grammar or, or obsessing over their pronunciations only serves to silence them further. What they need is an environment where they can communicate with each other and then troubleshoot the results. Go over bad communication and make it better. Identify their mistakes and correct them without being terrorized by culture stereotypes. Graduate Graduate education should be a safe space for them to do this before work in the real world attaches real pe- penalties to result of bad communication. With this syllabus and attached guidelines, we have tried to take a small step in the right direction. Communication skills play an important role in career development. This course aims at introducing basic concepts of communication skills with an emphasis on developing personality of the students. Thus, the main objectives of this course are to develop confidence in speaking language with correct pronunciation, to develop communication skills of the students, that is listening, speaking, reading, and writing skills. To introduce the need for personality development, focus will be on developing certain qualities which will aid students in handling personal and career challenges, leadership skill etc. देखिए हम लोग को क्या है कोर्स कंटेंट में क्या रहेगा थ्योरी में यूनिट 1 में कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोड्यूसिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ चुके हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं नहीं याद है Sender, याद है हाँ सर. बोलिए Sender, encode, channel, decode और हाँ बोलिए receiver. बोलिए बोलिए सेंडर हाँ आवाज आ रही है सेंडर एनकोड किया Encode, चैनल के channel माध्यम से भेजा और decode और receiver. डिकोड किसने किया रिसीवर ने किया उसके बाद फिर कुछ है फीडबैक Feedback. फीडबैक भी है हाँ वही मतलब मैसेज ही एनकोड हो रहा है ना डिकोड हो रहा है ना Yes, sir. अच्छा व्हाट इज कम्युनिकेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन Communication is the exchange of information. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कोई नहीं ठीक है धनीराम व्हाट इज कम्युनिकेशन Communication is the process of पहला communicating दूसरा क्लास में पढ़े थे among the different peoples. आवाज बहुत कट कट के आ रही है Communication is the process of communicating among different peoples. गुड मॉर्निंग व्हाट इज कम्युनिकेशन Sir, communication is the process of sending and receiving messages or information among people. तो देन टेल व्हाट इज कम्युनिकेशन Communication is the process of passing information from one person to another. एक होता बेसिक टाइप ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वाला ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं एक फॉर्मल और इनफॉर्मल व्हाट इज बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सर, से बेसिक टाइप का एक हो गया साइन लैंग्वेज हो गया दो प्रकार का बताया हाँ वर्बल नॉन वर्बल जो है ना वो बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का दो टाइप है Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का दो टाइप ठीक है हम लोग इसको एक बार और देख लेंगे
ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। मैं जानना चाह रहा था कि याद है कि नहीं किसी को, है ना? तो ठीक है, थोड़ा बहुत याद है सबको। ठीक है, बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, सॉरी वर्बल और नॉन वर्बल। हाँ, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल होता है बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल। verbal communication is the spoken and written स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ मैसेज, मतलब जिसमें मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि जिसमें शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्ड का इस्तेमाल कैसे कैसे हम लोग करते हैं? बोलने में और लिखने में, है ना? बोलने में और लिखने में करते हैं। बहुत जगह क्या है ना कि रिटन कम्युनिकेशन को आपका वर्बल से अलग रखता है, जो कि सही नहीं है। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आपका जो सिलेबस, नया सिलेबस में देख रहा हूं ना, इसमें लिखा है कि वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। बट रिटन जो है ना, वो वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक प्रकार है। वर्बल कम्युनिकेशन इज एनी कम्युनिकेशन जो कि शब्दों से, शब्द का इस्तेमाल जिसमें होता है, वर्बल में वर्ड्स तो का इस्तेमाल जिसमें होता है। नहीं, विकिपीडिया को अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, विकिपीडिया को फॉलो करते हैं, या फिर आपके जो रिकमेंडेड बुक्स जो है आपके लिए, उसको भी फॉलो करते हैं ना, तो दो प्रकार का ही है, वर्बल और नॉन वर्बल। लेकिन बहुत जगह में क्या होता है ना कि रिटन को अलग रखता है, बोलता वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वर्बल में ही पढ़ेंगे, ओरल और रिटन। वर्बल का क्या है, डेफिनेशन क्या है? verbal communication is the spoken or written conveyance of a message. स्पोकन और रिटन कन्वेंस ऑफ मैसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, शब्दों का, वह वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन है? जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना? तो क्या चीज का इस्तेमाल हो रहा है? इशारों का, है ना, सिग्नल का, साइन का, जेस्चर्स का, बॉडी लैंग्वेज का, है ना, आई कांटेक्ट का, यही सब का इस्तेमाल हो रहा है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिना शब्दों के इस्तेमाल के ही कम्युनिकेशन हो रहा है, वो है नॉन वर्बल। इसको बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको भी देख लेंगे एक बार और। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस और कर्टसी, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है इसमें। तो कुछ कुछ जो है ऐड हुआ है सिलेबस में। टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में भी हम लोग को पढ़ाना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस। इसमें क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन रहेगा सॉफ्ट स्किल्स का और हार्ड स्किल्स का। अच्छा, हार्ड स्किल क्या होता है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, बताइए कोई, तो कोई बता दीजिए, जिनको पता है वो बता दीजिए। हार्ड स्किल्स क्या होता है और सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, बता दीजिए। सर हार्ड स्किल्स में सर रिटन एबिलिटीज आ जाता है सर, जबकि सॉफ्ट स्किल में हमारा बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल या ये सब आता है सर सॉफ्ट स्किल। तो हार्ड स्किल क्या होता है और सॉफ्ट स्किल क्या होता है? कोई बोल रहा है रिटन राइटिंग वाला जो होता है स्किल वो हार्ड स्किल होता है, बोलने वाला स्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड स्किल क्या होता है, इसी का आपको पता है क्या, या किसी को भी पता है? सर हार्ड स्किल ऐसा है जो सर किसी को बताया जा सके और उसको सिखाया जा सके, जबकि सॉफ्ट स्किल वो जो इंसान है उसके अंदर वो खुद मौजूद होता है, जो खुद वो सुधार सकता है। हार्ड स्किल किसी को बताया जा सकता है, किसी को सिखाया जा सकता है, उसका अलग अलग मेथड हो सकता है सर। रीडिंग के जरिए बताया जा सकता है, राइटिंग के, रीडिंग के मेथड से उसको सिखाया जा सकता है, जबकि सॉफ्ट स्किल सर वो खुद उसके अंदर का एक हार्ड स्किल। नो सर, वो सॉफ्ट स्किल आ जाएगा सर। क्या हार्ड स्किल सर किसी को टीच किया जा सकता है। नहीं, जैसे कि नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी तो टीच किया जा सकता है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सॉफ्ट स्किल का कोर्स है, सॉफ्ट स्किल्स है ये। मतलब हार्ड स्किल क्या हुआ कि आप जो सीख रहे हैं, मतलब एग्जांपल से समझते हैं, आप जो यहाँ सीख रहे हैं वो है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल सीख रहे हैं। टेक्निकल जो आपको नॉलेज हो रहा है, आप जो भी चीज प्रैक्टिकल कर रहे हैं या थ्योरेटिकल जो भी कर रहे हैं, वो आपका हार्ड स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स क्या है कि आपने जो सीखा उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जो मैंने सीखा
उसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, वो सॉफ्ट स्किल्स से होगा। आप सीख गए सब चीज, है ना प्रभात, आप सब कुछ सीख गया, बहुत मतलब मान लीजिए कि सिविल से आपने किया डिप्लोमा, बहुत अच्छा आपका मार्क्स वगैरह आ गया, मतलब बहुत अच्छा 90% 95% आपका मार्क्स आ गया, बहुत अच्छा है आपका, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, आप थ्योरेटिकल में बहुत अच्छे हैं। हाँ, उसके बाद आपका क्या टारगेट होता है, नौकरी करने का टारगेट होता है ना। नौकरी करने के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, यस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और वहां सॉफ्ट स्किल्स है। बिना सॉफ्ट स्किल्स के आपका हार्ड स्किल का क्या होगा। मान लीजिए अपना खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं अगर आप, मान लीजिए डीजल मैकेनिक से किसी ने डीजल मैकेनिक है कोई, है ना, डीजल मैकेनिक है, मतलब डीजल मैकेनिक इसलिए क्योंकि मैं अभी एक डीजल मैकेनिक से मिल के आया था, इसलिए उसका याद आ रहा है मेरे को। डीजल मैकेनिक है कोई, यानी कि गाड़ी वाड़ी का उसको नॉलेज है, वो गाड़ी वाड़ी ठीक करता है। हाँ, वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, गैरेज खोल लिया है, गाड़ी वाड़ी को ठीक कर रहा है, तो उसका हार्ड स्किल है, उसको आता है वो काम, उसका हार्ड स्किल है। लेकिन वहां भी सॉफ्ट स्किल का जरूरत है उसको, कस्टमर से बात कर अच्छा से नहीं करेगा तो कस्टमर को अच्छे से उसको हैंडल करना पड़ेगा ना, उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स चाहिए उसको। कस्टमर हैंडलिंग के लिए सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, अपने स्टाफ को हैंडल करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, लेकिन वो गाड़ी ठीक करने के लिए उसको हार्ड स्किल चाहिए। तो दोनों स्किल का बहुत महत्व है। अगर हार्ड स्किल का वैल्यू है, अगर वो हार्ड स्किल महत्वपूर्ण है, तो सॉफ्ट स्किल्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है सर बिना हार्ड स्किल, आपका हार्ड स्किल्स जो है वो काम नहीं आएगा। सर सॉफ्ट स्किल मतलब जैसे कि हम लोग बोलिए, अभी जो ये सॉफ्ट स्किल वर्क है पर जॉब करते हैं तो ये सॉफ्ट होगा। आप लोग का 12 बजे से भी क्लास है, लगातार हो जाएगा नहीं तो फिर, है ना, 5 मिनट पहले छोड़ देते हैं।